आंध्र प्रदेश में कल पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन अमला भी पोलिंग मराकज़ पहुंच गया है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कल 2640 सरपंच और 19,607 वार्ड मेंबर्स के लिए वोट डाले जाएंगे। सुबह 6:30 बजे से वोटिंग का आगाज होगा। दोपहर 3:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। शाम 4 बजे वोटों की गिनती होगी। आंध्र प्रदेश में म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए एलामिया जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता साल जहां से कार्रवाई रुक गई थी, वहीं से शुरू करने का ऐलान किया है। गुज़श्ता साल कोरोना की वबा के पेश नज़र इंतखाबात को रोक दिया गया था। तेलुगु देशम पार्टी ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए वक्त देने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है। The recent judgment of the High Court specifically mentioned that the Election Commission has enormous powers, including for repoll, postponement or cancelling the election, anything relating to election process. So in that process, exercising that power which is vested to the State Election Commission under 243 read with 324, which is for Central Election Commission, we requested the SEC to allow either general time to file nominations on municipalities. Basically, that is the first demand, because it is 11 months are over. There are some deaths. There are candidates who file nominations are not in a mood to contest. There is a political pressure. There are different issues where we cannot expect the election the same tempo in which the elections were postponed. So at least we requested the election commissioner to allow the nominations in those constituencies against which he already reported to the Secretary Ministry of Home in the month of March 2020, because the unanimous declaration of the 100% of the total nominations, because in respect of MPTCs it is 100%. You take Macharla, you take Kadapa or in Kalahasti. So in those districts, in particular some constituencies, the unanimous declaration is 100%. In 16 constituencies, the unanimous is more than 85%. So at least in such constituencies, exercising his powers, we requested the SEC to allow fresh nominations. CPI ने रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए एलामिया जारी करने का खैर मकदम किया। CPI लीडर रामकृष्णा ने दोबारा पर्चे नामजदगी दाखिल करने का मौका फराहम करने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया। Against the unanimous elections, because at the time of filing of nominations, the ruling party led by its YSRCP, they obstructed many people, the aspirants of the other opposition political parties, and they created so many obstruction in filing the nominations. Particularly in Punganur, Dronachalam and Pulivendala and also in Macharla, they have obstructed all the opposition candidates not to file nominations. So that these are all our unanimous elections. So we request the commissioner to call for the nominations once again where there is a unanimous election. The election commission also promised they are examining the issue according to the High Court orders. They will conduct the elections with free and fair. जिला मशरकी गोदावरी में स्पेशल इन्फोर्समेंट पुलिस ने भारी मकदार में शराब जब्त की। कल आंध्र प्रदेश में पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए वोट डाले जाने वाले हैं। ऐसे में शराब की गैर कानूनी मुंतकली में इजाफा हो गया है। पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना से भारी मकदार में शराब को आंध्र प्रदेश मुंतकिल किया जा रहा है। फिलवक्त स्पेशल इन्फोर्समेंट के ओहदेदारों ने भारी मकदार में शराब जब्त की है, जिसकी मालियत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 5 अफराद को भी हिरासत में लिया है। विशाखा स्टील प्लांट को खानगियाने के खिलाफ जगियापेटा में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। विशाखा स्टील प्लांट मेन गेट के बाहर मुलाजमीन ने एहतजाज किया और मरकज के खिलाफ नारेबाजी की। मुलाजमीन के एहतजाज में सरकारी विप सोमी नैनी उदय भानु ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत स्टील प्लांट को प्राइवेटाइज के सख्त खिलाफ है। इस सिलसिले में वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने मरकज को एक मकतूब भी रवाना किया है।
सरकारी विप ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की जरूरत है। एहतजाजी मुलाजमीन ने विशाखा स्टील प्लांट को खानगियानी के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 10वीं जमात से लेकर इंटर डिग्री पीजी की क्लासेस चलाने को मंजूरी दे दी है। विजयवाड़ा के SRR सरकारी कॉलेज में बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा करते हुए तलबा ने एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा का कहना है कि सुबह से शाम तक क्लासेस चलाए जा रहे हैं, जबकि कॉलेज में बुनियादी सहूलियात ना के बराबर हैं। इसके अलावा क्लासेस में तलबा को बैठने के लिए बेंच भी नहीं है। एहतजाजी तलबा का कहना है कि जब क्लासेस चलाए जा रहे हैं तो बुनियादी सहूलियात भी फराहम की जानी चाहिए। SRR కాలేజ్లో స్థానికంగా తరగతి గదులు వాష్రూమ్స్ వెళ్ళడానికి చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది। విద్యార్థులు క్లాస్ రూమ్స్ లేక తరగతి గదుల్లో కూర్చోలేక 40% మాత్రమే విద్యార్థులు చదువుని కొనసాగిస్తున్నారు। మిగతా వాళ్ళందరూ గ్రౌండ్లో చెట్ల కింద బెంచ్ల్లో క్యాంటీన్లో తిరుగుతూ ఉన్నారు। క్లాసులకు వెళ్ళరా అంటే క్లాసులు లేవు, క్లాసులు ఖాళీగా లేవు, బెంచులు లేవు, క్లాసుల్లో కూర్చోడానికి చైర్లు లేవు। పోనీ అమ్మాయిలు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఉండాలంటే మినిమంగా కావాల్సింది వాష్రూమ్ కూడా సరిగ్గా లేవు, నీళ్లు రావట్లేదు। పోనీ మంచినీటికి ఏమైనా తాగడానికి నీళ్లు ఉన్నాయంటే తాగడానికి నీళ్లు లేవు। కళాశాలలో ఉన్న సమస్యలు అంతంత మాత్రాన ఏమీ లేవు, వాష్రూమ్స్ సరిగ్గా లేవు, మళ్ళీ క్లాస్ రూమ్స్ కూడా సరిగ్గా లేవు। వీటన్నిటిని మేము ప్రభుత్వాన్ని అడిగేది ఏంటంటే మాకు క్లాస్ రూమ్స్ కానీ వాష్రూమ్స్ కానీ మామూలుగా ఉన్న కాలేజీలో ఉన్న స్థానిక సమస్యలు అన్నిటినీ 22 फरवरी से विजयवाड़ा में कुंडापल्ली दरगाह हजरत सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकारीब का आगाज होने वाला है। हुक्मरान जमात के रुकन असम्बली वसंत कृष्णा प्रसाद ने आज दरगाह का दौरा करते हुए उर्स तकारीब की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उर्स कमेटी के चेयरमैन अल्ताफ रजा के अलावा दरगाह इंतजामिया कमेटी ने जिम्मेदारान व दीगर भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने उर्स के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम करने का ओहदेदारों को हुक्म दिया। मरकज की जानिब से लाए गए 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। किसानों ने 18 फरवरी को रेल रोको एहतजाज का ऐलान किया है। साबिक़ वज़ीर ज़राअत शोभा नादरेश्वर राव ने किसानों के रेल रोको एहतजाज को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। विजयवाड़ा में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत किसानों के मसाइल को लेकर संजीदा नहीं है। यह मसला सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि पूरे मुल्क की आवाम का है। Coordination Committee has condemned the attitude of the Prime Minister, and it demanded that at least now Government of India should rethink, should step back and repeal the 3 formulas. Leave the Farmers Produce Trade Commerce Act and the Contract Farming Act to the state governments, because they fall in the domain of the states. List 2, over which Government of India nor Parliament can make any act. It is only in Essential Commodities Act central government has power to bring an act, but that should be done with consultation of the state governments and the consumers organizations and the farmers organizations only. So our AP Coordination Committee has appealed to the people to make success the 18th February rail roke program between 12 noon and 4 PM. 14 फरवरी को चित्तौड़ से अजमेर शरीफ जाने वाली बस करनूल जिले में हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 14 अफराद हलाक हो गए थे, 4 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इन 2 बच्चों के वालिदैन हादसे में हलाक हो गए हैं। आज जेपी मार्बल्स के मालिक कलीमुल्लाह ने अस्पताल पहुंचकर इन 2 बच्चों के लिए माली इमदाद फराहम की। मकामी सीआई तबरेज ने जेपी मार्बल्स के मालिक कलीमुल्लाह के इक़दाम की सताइश की। मदनपल्ली से अजमेर शरीफ को जाने के लिए एक फैमिली, मुसलमान एक फैमिली मदनपल्ली से निकल को अजमेर जाते वक्त इधर वेल्लूर तक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में पूरा 14 मेंबर्स इंतकाल हो गए। इसमें खाली 4 जने बच्चे छोटे छोटे मारा से इंजरीज होके हॉस्पिटल में एडमिट करें। एडमिट होने के बाद यहाँ हमारा हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट साहब बंदे, कलेक्टर साहब बंदे और हमारे
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।